अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल-अयाज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके ज़हरा नगर में भरोसा सेंटर का संगे बुनियाद रखा गया है। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार, होम मिनिस्टर महमूद अली, AIMIM हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी, मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, DGP M महेंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाहिद की ये रिपोर्ट। श्रीमान गार्ड विसर्जन करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। गार्ड बगल शस्त्र। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शाहिद रिपोर्टर। ఓల్డ్ సిటీలో మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ కింద ఒక భరోసా సెంటర్కి ఫౌండేషన్ స్టోన్ ప్రోగ్రాం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంలో మన ప్రియతమ హోమ్ మినిస్టర్ గారు మహమూద్ అలీ గారు, తర్వాత హైదరాబాద్ MP గారు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, MLA బలాలా గారు, MLA అహ్మద్ పాషా గాద్రి గారు, MLC గోల్డీ గారు, తర్వాత అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్, పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్, అడిషనల్ CP క్రైమ్ శిఖా గోయల్, అడిషనల్ DG విమెన్ సేఫ్టీ స్వాతి లక్డా, అడిషనల్ CP ట్రాఫిక్, అడిషనల్ CP లా అండ్ ఆర్డర్, జాయింట్ CP SB, సౌత్ జోన్ అందరు స్టాఫ్ ఈ ఫంక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం మన భరోసా సెంటర్ తర్వాత షీ టీమ్స్ ఇది కంట్రీలో ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంది విమెన్ సేఫ్టీ గురించి. లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్లో భరోసా సెంటర్ సైఫాబాద్ ద్వారా మోర్ దెన్ 60-70 కేసెస్లో కన్విక్షన్ వచ్చింది. 10,000 పైన విమెన్ ఆఫీసర్స్ చిల్డ్రన్కి రిలీఫ్, మెడికల్ రిలీఫ్, కౌన్సిలింగ్ అన్నీ జరిగింది. సో ఈ సేమ్ సిస్టమ్ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ సిటీలో కూడా నెక్స్ట్ 12 months తర్వాత ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ సందర్భంలో పబ్లిక్ సపోర్ట్, పబ్లిక్ అవేర్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. నేను అందరు లేడీస్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఎనీ ప్రాబ్లం మీరు డయల్ 100 చేయండి. డయల్ 100 రెస్పాన్స్ అంటే 10 minutes లోపలికి తప్పకుండా మీ దగ్గరికి వస్తుంది. అండ్ ఇదే విధంగా అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్లో మన లోకల్ SHO షీ టీమ్స్ తరఫు నుంచి ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్లో అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ కూడా జరుగుతుంది. ఇదిలో కూడా మీ అందరు పార్టిసిపేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. पीछे ठहरो। पप्पा थैंक यू. ओके अनिल, थैंक यू. भाई लोगो मारो, कौन मार रहे लोगो मारो, लोगो ఈరోజు चलिए सर। ఓల్డ్ సిటీలో భరోసా సెంటర్ ఫౌండేషన్ పెట్టారు. నెహ్రా నగర్ ఓల్డ్ సిటీ చార్మినార్లో వస్తుంది. చార్మినార్ దగ్గర భరోసా సెంటర్ ఫౌండేషన్ పెట్టారు. ఇది మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. మన దగ్గర మా ఆనబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ పోలీసులు ఉమెన్స్ టీమ్, షీ టీమ్ తయారు చేశారు. భరోసా సెంటర్ తయారు చేశారు. 4 years వాళ్ళు చేస్తున్నారు. భరోసా సెంటర్ చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లం ఉంటే ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఫ్యామిలీ ప్లాన్లో మా షీ టీమ్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. మహిళా ఆఫీసర్స్, IPS ఆఫీసర్స్
చాలా బాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, బాగా రిజల్ట్ వస్తున్నారు. ఇది మనకు అంత మంచి బెనిఫిట్ వచ్చింది తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత. భరోసా సెంటర్ షెడ్యూల్ ద్వారా చాలా లేటెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశారు. మా పోలీస్ ఇండియాలో అంటే నెంబర్ 1 పోలీస్ తెలంగాణ పోలీస్ పనిచేస్తున్నారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత డే బై డే పోలీసులు అంటే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. పెట్రోలింగ్ అంటే చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మా ఇండియాలో ఫస్ట్ పోలీస్ ఉంది ఇండియాలో. పెట్రోలింగ్ అంటే విత్ ఇన్ 5 minutes హైదరాబాద్లో 100 times ఇస్తూ వస్తుంది. లేడీస్కి అంటే సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఇచ్చిన పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ షీ టీమ్స్ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు జైరా నగర్లో చార్మినార్ కాన్స్టిట్యూషన్ వస్తుంది. జైరా నగర్ లేకపోతే న్యూ సిటీకి ఒక జైరా నగర్, ఓల్డ్ సిటీ జైరా నగర్లో ఫౌండేషన్ పెట్టారు. ఇది నియర్లీ 4 crores 8 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది. విత్తిన 1 year టైం ఉంది. 1.5 yearలో తయారైంది. తయారైన తర్వాత ఓల్డ్ సిటీ చాలా ఆయనకు సపోర్ట్ వస్తుంది. టోటల్ బిల్టప్ ఏరియా 9,000 square feet ఉంది. ఇంత మంచి బిల్డింగ్ ఎక్కడ లేదు. ఇది ఓల్డ్ సిటీ ఇంత మంచి బిల్డింగ్ కడుతున్నారు. ఈ బిల్డింగ్ వార్ ద్వారా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు బాగా పని చేస్తున్నారు. ఈ మొత్తం అయినది ఈ బిల్డింగ్ తయారైన తర్వాత ఇంకో బెనిఫిట్ వస్తుంది అందరికీ. ఎందుకంటే ఎక్కువ మ్యాటర్స్ సూసైడ్ చేసినా అంటే ఫ్యామిలీ మ్యాటర్లో అవుతుంది. ఈ పోలీస్ కౌన్సిలింగ్ చేసిన తర్వాత సెటిల్ చేస్తున్నారు. మన దగ్గర 90% రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇది బాగా ఉంది. నేను అందరూ ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. ఈ బిల్డింగ్ రెడీ అయిన తర్వాత మంచి స్పేస్, బాగా స్పేస్ ఉంది. మంచి వర్క్ చేసడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మా కమిషనర్ గారికి నేను మొత్తం ఆయన టీంకి పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. మా పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ దామోదర్ అన్నది ఉన్నారు. అలా ఢిల్లీలో బిల్డింగ్ కట్టుతున్నారు. అందరికీ ఈ పబ్లిక్ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. ఓల్డ్ సిటీ తెలంగాణ వచ్చే ముందు ఒకటి డౌట్ ఉంది అందరికీ. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మా ఇండియాలో నెంబర్ 1 ల్యాండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ ఉందంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఫ్రెండ్లీ కాన్సెప్ట్తో పనిచేస్తుంది. అదర్ స్టేట్లో వచ్చే యూపీ, బీహార్లో అదర్ స్టేట్లో వచ్చిన తర్వాత మా దగ్గర ఎట్లా చేస్తున్నారు, పోలీస్ వర్క్ ఎట్లా చేస్తున్నారు అంటే సర్వే చేస్తున్నారు. ఈ షీ టీమ్స్, మహిళా టీమ్స్, మహిళా సెంటర్స్, భరోసా సెంటర్ అదర్ స్టేట్లోకి ఓపెన్ చేసినది ట్రై చేస్తున్నారు. ఇది చాలా బాగా సైన్ ఉంది. మనకు మంచి మహిళకు సపోర్ట్ చేసినట్టు మా ఫస్ట్ డ్యూటీ ఉంది. తప్పకుండా ఇది బిల్డింగ్ చాలా బాగా ఉంది. ఓల్డ్ సిటీలో అందరూ సీన్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అందరూ మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ लगा दो खाली पकड़ लो अंदर नीचे करो भाई, लोगों नीचे करो बराबर। ये लेवल में रखो भाई, ये लेवल में नीचे करो जी। बहुत ज़्यादा हो भाई एक लेवल में रखो। आज पुराने शहर में खासतौर चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी ज़ायरा नगर में एक भरोसा सेंटर का फाउंडेशन डाला गया। ये बहुत बड़ा एरिया है इसका और 9,000 स्क्वायर फीट तो इसका बिल्टअप एरिया आ रहा है। तेलंगाना बनने के बाद हमारी पुलिस टीम जो है फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करती है और हमारे टीम खासतौर से भरोसा सेंटर 4 साल से मुसलसल काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से लोगों के फैमिली मैटर, लोग अपने पेरेंट्स के पास भी जो मसला हल नहीं होता, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के महिला अहदेदार हैं स्वाति बकरा मैडम और माशाल्लाह जो शादियों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, ज़रा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर हर शादी में दूल्हे से गले मिल जाएंगे। अगर आप गले मिलेंगे तो याद रखिए कोरोना आपको दूल्हा बना देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एहतियात करिए, दूर से दूल्हे को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि कोरोना ऐसा है कि कभी किसी को दूल्हा बनाता तो कभी किसी को दुल्हन बना देता। तो दवाखाने अभी भी आबाद हो रहे हैं, इसको बचाइए अपने आप को और जितना हो सके आप लोग वैक्सीन भी लीजिए। इंशाल्लाह मैं भी वैक्सीन लूँगा और वैक्सीन से हम तमाम को अपनी जानों को बचाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट जल्द से जल्द ये इस बिल्डिंग के काम को शुरू कराकर बताया गया है कि 12 महीने में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरा जो सियासी तजुर्बा है, पुलिस गवर्नमेंट की तरफ से
कोई काम 12 महीने में नहीं होता, कम से कम 24 महीने में आप उसको ख़त्म कर दीजिए, मगर ज़रूर ख़त्म करिए। मैं फिर से हमारे कमिश्नर पुलिस साहब का, अंजनी कुमार साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके मातहत शहर हैदराबाद में सुकून है और वो तमाम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। ऑनरेबल एमपी हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब MLA याकूबपुरा, जनाब अहमद बलाला साहब MLA मलकपेट, श्री के दामोदर साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जनाब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, जनाब DS चौहान साहब एडिशनल CP, श्रीमती शेखा गोयल साहिबा एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, श्री अनिल कुमार साहब एडिशनल DG ट्रैफिक, स्वाति लेखरा साहबा एडिशनल DG वुमेंस विंग, जनाब तरुण जोशी साहब जॉइंट CP, जनाब श्री गुज्जर राव भोपाल राव जी DCP साउथ जोन, जनाब सैयद सोहेल साहब कादरी साहब कारपोरेटर पत्थरगट्टी, सलाउद्दीन साहब DRS इंचार्ज चारमीनार, मीडिया फ्रेंड्स, इस महफिल में आए हुए तमाम मेरे भाइयों बहनों, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज ओवल सिटी में भी एक भरोसा सेंटर कायम किया जा रहा है। ये तेलंगाना स्टेट बनने के बाद और तेलंगाना स्टेट बनने से पहले जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, हमारे CM साहब ने तकरीबन पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले 36 पार्टियों से मुलाकात की थी। बाज़ पार्टियों से तो 10-10 बार मुलाकात करना पड़ा था, क्योंकि सबको यही डर था कि तेलंगाना बनेगा तो यहाँ का लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। एक बात मशहूर थी, तेलंगाना में नक्सलिज्म भी बहुत ज़्यादा है। हर कोई यही सवाल करता था कि तेलंगाना आप हासिल कर लेंगे, हासिल करने के बाद तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं है, नक्सलिज्म को ख़त्म करना ये आसान काम नहीं है। इसके अलावा बहुत से मसाइल थे यहाँ पर, पावर के मसाइल थे, एग्रीकल्चर मसाइल थे। मगर आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जिस तरह तेलंगाना में लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। शी टीम अगर शुरू हुई तो तेलंगाना स्टेट में शुरू किया गया, हैदराबाद में शुरू किया गया। आज अदर स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, हमारी पुलिस की कारकर्दगी देखने के लिए। जिस तरह पुलिस यहाँ पर फ्रेंडली पुलिस की काम की, पुलिस का जो इमेज हमारे पास बढ़तेगा और लोगों के साथ पुलिस जो फ्रेंडली पुलिस रही, हमेशा उनके साथ ताउन करते रही, वो यकीनन एक मिसाली इक़दाम है। आज यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम तेलंगाना स्टेट के अंदर इतना प्यार और मोहब्बत बढ़ा है हिंदू मुस्लिम एकजाती के अंदर। आज लैंड ऑर्डर इतना अच्छा है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना बनने से पहले हमेशा फिसादात हुआ करते थे। पुराने शहर में मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, कभी कभी कर्फ्यू लग जाता था, लोग परेशान रहते थे। और तेलंगाना बनने के बाद से सिवाय भैंसे के कर्फ्यू तो कहीं नहीं लगा, वहाँ भी 144 लगा। वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान बनाया जा रहा है और आइंदा वहाँ पर भी कभी फिसाद नहीं होगा, मैं आपको तयकीन देता हूँ। ये किया गया है, मैं यकीनन हमारे कमिश्नर साहब को और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और शी टीम्स ये बहुत ज़रूरी है, भरोसा सेंटर ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में किसी जगह भी शी टीम्स नहीं थी, शी टीम्स हमारे पास से शुरू किया गया, भरोसा सेंटर हमारे पास से शुरू किया गया। क्योंकि मैं जब भी जिस भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से, तो कहते हैं कि फैमिली मैटर। तो हमारे में भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। यकीनन हमारे असद भाई ने जिस तरह कहा, हमें हमेशा अपनी बहनों औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करना चाहिए। फैमिली मैटर के अंदर हमेशा ये होता है कि औरतों से झगड़े शुरू होते हैं, बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। अगर हम अपने बहनों से, अपने फैमिली से, अपने लोगों से बहुत अच्छे रब्ज़त बरकरार रखें,
आगे भी उनके साथ बहुत रेस्पेक्ट दें। हमारे सीएम साहब भी वही चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसी स्टेट में भी हिंदुस्तान में असेंबली में बिल पास नहीं होगा 50% कारपोरेटर होना ज़रूरी है। आज हमारे पास कारपोरेटर में 50% महिला को दिया जा रहा है। आप जानते हैं पुराने शहर में भी बहुत सी हमारी बहनें कारपोरेटर हैं। उसी तरह मेयर को महिला को दिया गया, डिप्टी मेयर महिला दिया गया, हैदराबाद की एमएलसी भी महिला दिया गया। सीएम साहब का भी यही नजरिया है कि हमें महिला को अच्छे से अच्छा मुकाम दिया जाए। वो दुनिया के हर तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर महिला बराबर का हिस्सा अदा करते हैं, तो हमारी बहनें भी बराबर का हिस्सा अदा करें और वो तरक्की करें और अपने शहरों का, अपने ख़ानदानों का उनके हाथ बटाएं ताकि वो ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये यहाँ पर जो ज़हरा नगर के अंदर जो भरोसा सेंटर कायम किया जा रहा है, ये तकरीबन 4 करोड़ 8 लाख का है और इसका 9,775 स्क्वायर फीट है। एक बार ये मुकम्मल हो जाएगा, मैं असद भाई से वादा करता हूँ ज़रूर 2 साल के अंदर 100% मुकम्मल हो जाएगा। 1 साल का तो एस्टिमेट रखा गया है, मगर इंशाल्लाह 2 साल में इसे मुकम्मल किया जाएगा। उससे जल्दी ही किया जाएगा अगर आप समझते हैं तो। उसके बाद यहाँ होगा ये कि औरतों को बड़ी सहूलत होगी। भरोसा सेंटर का मतलब ये है, आप भरोसा किस पर करते हैं? लोग अपनी माँ पर, लड़कियाँ अपनी माँ पर भरोसा करते हैं, अपनी बहन पर भरोसा करते हैं। हमारी महिला टीम, महिला पुलिस भी उसी तरह आपको कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट करती है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर कोई यूज़ कर रही है किसी स्टेट की पुलिस तो तेलंगाना पुलिस है। कैमरे तो जगह जगह लगे हैं, पर कई पुलिस ऑफिसरों के पास गले में कैमरे होते हैं, इनके बटन में कैमरे होते हैं, फ़ोन इनके पास पेन में कैमरे होते हैं, मगर लोगों को महसूस नहीं होता। आज क्राइम हमारे पास इतना कम हो चुका है, नहीं ज़रूर इसलिए कि लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। मालूम होना चाहिए कि हम क्राइम करके बच नहीं सकते। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज लोगों में बात यकीन से कह रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर क्राइम करके बच नहीं सकते। ये लोगों में एक आम बात आ चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए क्राइम दिन ब दिन कम होता जा रहा है और ये भरोसा सेंटर से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और हम यही चाहते हैं, मैं जब भी हमें किसी पुलिस स्टेशन में जाता हूँ तो पूछता हूँ तो कहते हैं कि भाई ज़्यादातर केसेस ख़वातीन के केसेस हैं, फैमिली मैटर के केसेस हैं। तो इंशाल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि कभी भी इस मसले को कोर्ट तक ना जाए, आपस में बैठकर इस मसले को हल किया जाए हमारे पुलिस महिला ऑफिसर से भी। और एक बात बताता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितना इंक्रूवमेंट हो रहा है उसमें 33% महिला को दिया जा रहा है। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद फर्स्ट में 10,000 का जियो जारी किया था, जिसमें कॉन्स्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर थे। दूसरी मरतबा 17,000 का जियो जारी किया गया और अब 20,000 का जारी किया गया। पुलिस की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा रही है। बस सीएम साहब ने इसमें एक बात कहा, 33% महिला होना चाहिए ताकि हर पुलिस स्टेशन में महिला रहेंगे तो हमारी महिला बहनों के जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से खुल के बातचीत कर सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकें। आज जो यहाँ का बहुत बड़ा महिला सेंटर जो बन रहा है, ये भरोसा सेंटर, यकीनन हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ओल्ड सिटी में भी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और यहाँ के अतराफ़ के रहने वाले ओल्ड सिटी के महिला के लिए हेड क्वार्टर रहेगा। यहाँ उन्हें कोई भी मसाइल रहेंगे यहाँ आकर वो मसाइल हल कर सकते हैं। मैं हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। वाक़ई दावना अल्हम्दुलिल्लाह। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।